Hi Rahman Rahim. Welcome to lecture number 24 of this series. We are gradually moving towards the end phase of this course, and by now we've covered quite a lot of stuff, a lot of theory, and then we've gone through graphs, we've gone through quite a few practical examples, a few podcasts, and in the coming lectures also you would see the same mixture, a bit of theory, not a lot of theory like we covered in the first phase. That was all theoretical, but now it would be more on the practical basis and on the basis of graphical demonstration or calculations to show how we arrive at a certain conclusion, or how do we go about that stuff. The theoretical background, of course, as I've always maintained, that it's necessary to have a good background, a good view of history, a good learning of history, not asking you to master all the history, but just want you to learn how a certain concept developed and what were those stages of development, how it came about. So by now this is, as they say, going towards the end game. It's more about calculation and graphics. And certainly in the last few lectures you'd see a lot of these calculations and graphical depictions, which, mind you, are the basis of all that we've studied. Once you go into practical life, once you go into policy making, you'd recognize that it's all about these methods. Nobody's going to ask you about the theory, but you would be able to show them something, you would be able to discuss it, you would be able to have an opinion on public policy analysis with the kind of analysis that you have done, both graphical. In practical life you would be implementing that graphical and that computational analysis that we are doing over here, where some of the very basis tool that is used in the public policy analysis classes. So hopefully you are up to date till now for this class what we've done, and it has been a smooth sailing ride for you. I have done my best to update you, to pass on the knowledge to you. Hopefully you've got it well, you've received it well, and you've understood what I've said. Let us hope it continues on like that. So let's move on towards the lecture. First of all, what we did in the previous lecture, what we did was a graphical analysis of tariff and quota. Specifically what I drew was the graph that I drew, it was related to quota, and then we studied all those areas where they go. Do they go to the consumer, do they go to the producer, and what happens when government imposes a tariff, what happens to the price, and how do you represent that by areas. And remember that in terms of quota, the only change that we would be making is that we'll be including a supply curve that shifts rightward. Now I explained to you why there would be a supply curve and why it would shift rightward instead of backward, signaling less supply, and why it wouldn't be like that. And the only thing that is different in what it does to that picture, that graphical analysis, is, in fact, I'm going to just go to it through it briefly again, just to make sure that you've understood it, and you'll be with me on this one. The kind of the graph that I make, you'll be following those steps, and in fact you try to make it even before I make it, just to give you an idea how good you are at this thing by now. But anyway, what we did was that in terms of quota, we introduced a supply curve, and that supply curve created a new area over there that neither went to the government, nor to the consumer, nor to the producer. It went to the import licensee, who got that import license from the government. That surplus went to them. And remember, in both the cases there was this deadweight loss. Deadweight loss due to the imposition of a tax.
tariff and quotas, they are also a form of tax. Tariff specifically, quota is just a limitation of imported goods, and this was a part of two things. One, taxation policy, that is an extremely important component of any public policy, any government policy. The second, it was part of international trade or trade, let's say. Trade, one is in between the countries, and the other one is domestic trade. Over here, when we are talking about tariff and quota, it applies to international trade. And it is important, as we will study in the coming lectures. The next one or two lectures, I believe, are specifically devoted to trade and its importance. So it is important. It is important in this regard that we study it as what happens when we levy a tax to general welfare, any sort of tax. This kind of analysis of taxation that we did earlier in the general equilibrium analysis, where I showed two areas: one is consumer surplus, one is producer surplus, and what happens to it when you impose a tax. And basically, it is that we did that analysis in terms of one of the most important things to recognize over there was that in case of taxation, when you are thinking about the economic incidence, the most important concept, the most critical concept over there is elasticity. You need to have a grasp of that concept of elastic demand curves and inelastic demand curves, and that would tell you pretty correctly, people have done that, and they've been, without even coming up with a number, people have been able to predict the results or the economic incidence of a tax, that on whom would it befall, on which person, which group would it befall, by using this simple graphic analysis and an understanding of taxation and the concept of elasticity of supply and demand. So tariff and quota, they are also taxes, but they apply to international trade, and international trade is so important. In fact, all trade is so important that it's a neglected part of many textbooks, especially public policy analysis. But let me tell you, as an economist, as a public policy analyst, this is perhaps one of the most important parts of any of the growth of a country, growth of an economy. I don't know why books tend to disregard this aspect, and they don't teach that. In many of the books, specifically the books that I mentioned, the books that I recommended, you won't find any such analysis on trade, but believe me, it is important, and we will see why it is important in the coming lectures. But anyway, this was this graphical illustration of this tariff and quota and what it does to trade. Now remember, the difference between tariff and quota was that tariff, in the case of tariff, you just have to pay a tax. You can import as much as you like. There is no restriction upon the units imported. Now, but in the case of quota, in contrast, there is a restriction upon the units imported. There can be only certain amounts of units that can be imported. Other than that, it can't be imported. So that was pretty much it for tariff and quota. Then we went through the prisoner's dilemma in the game theory. This is the most basic starting point. If you read any game theory book, this is the starting point of it. Read any game theory book. You'd find in the start, you'd find that they start with this prisoner dilemma and then continue on. The basic argument, or the basic argument that I'm trying to make over here, or the basic application of game theory is vast enough in order to merit a study and be a public policy class. Now, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये चीज़ें शायद कवर ना हो, गेम थ्योरी शायद कवर ना हो, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ टैरिफ एंड कोटा तो बिल्कुल कवर नहीं है, लेकिन यकीन करें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी हम पढ़ेंगे मज़ीद जब ट्रेड के बारे में, तिजारत के बारे में, ख़ास तौर पे जो आलमी तिजारत होती है, कि व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट.
इसकी क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है। और जब इंशाल्लाह ताला जब एक दफ़ा हम गो थ्रू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। गेम थ्योरी जो है ये बेसिकली स्ट्रेटजीज़ को डील करती है कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है हमने फेस्ड विद अ सर्टेन सिचुएशन, व्हाट वुड बी अ स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़िंदगी के हर शोबे में आपको मिलेगी। एवरी एस्पेक्ट हैज़ दिस गेम थ्योरी वेयर यू person comes up with a strategy either as a cooperative strategy or either as a strategy in response to something. So over here what I am just trying to do over here is that I am trying to give you a very basic understanding of it. मैं इसमें कोई complex चीज़ें नहीं कर रहा गेम थ्योरी में, कोई भी आपको complex introduction नहीं कर रहा, वो उसके लिए आपको गेम थ्योरी की एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी। गेम थ्योरी जो है it's not that honestly it's not that easy, it's a part of mathematical economics। ज़ाहिर है इसमें आसानी से उसमें जो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं इंट्रोडक्टरी, उसमें ये मैथमेटिक्स नहीं होती, लेकिन ये कि गेम थ्योरी जो है उसमें ये स्टिल ये काफ़ी चैलेंजिंग कोर्स है, काफ़ी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल। मैंने जब पढ़ा था मेरे लिए भी मुझे काफ़ी इसमें दिक्कत हुई थी, काफ़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि इसमें तकरीबन सब चीज़ें आ जाती हैं। गवर्नमेंट एक्शन आ जाता है, फॉरेन रिलेशंस आ जाते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी आ जाती है। गेम थ्योरी में के 2-3 जो प्रैक्टिस करने वाले थे उनको 3-4 दफ़ा जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। बेसिकली ये स्ट्रेटजी एक बनाने की है कि क्या हमने तरीक़ाकार अपनाना है, और ये तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बहुत ही इसकी बेसिक किस्म की गेम थ्योरी से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में, विच इज़ अगेन सरप्राइजिंग फॉर मी। मेरे लिए थोड़ी सी ये हैरत की बात है कि क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें तकरीबन मैं जैसा कि मैंने कहा कि हर किस्म का प्रॉब्लम जो है वो इसमें कवर होता है, और इसमें पहले से ही एक कोशिश की जाती है कि स्ट्रेटजी का अंदाज़ा लगाया जाए कि मुखालिफ होगा या साथ का कोई और होगा इसी फील्ड का, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा, उसके क्या तरीक़ाकार क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पे गैस चोरी और बिजली चोरी का बड़ा मसला है, टैक्स नहीं देते लोग। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि टैक्स जो है बहुत कम है। जितने टैक्स पेबल जो परसेंटेज है पाकिस्तान के लोगों की, जितने टैक्स मतलब जो लोग टैक्स पे कर सकते हैं वो इस्तेदाद रखते हैं, उसमें से बहुत कम जो है पे करते हैं। शायद 1 या मुश्किल से 2% लोग वो पेमेंट करते हैं टैक्सेस की, जो कि बड़ी शर्म की बात है। लेकिन एनीवे अब गेम थ्योरी जो है उसमें ये चीज़ आ सकती है कि हुकूमत जो है अपनी एक स्ट्रेटजी बनाती है, और फिर उसके मुकाबले में जो टैक्स ना पे करने वाले हैं ज़ाहिर है वो भी एक स्ट्रेटजी बनाते होंगे। एंड दिस इज़ रियल, ये होता है, ये हकीकत में होता है कि जब हुकूमत एक पॉलिसी का ऐलान करती है कि टैक्स ज़्यादा करने के लिए, तो फिर आगे से जो कोई ऐसा लॉ ले आई, कोई ऐसा कानून ले आई जो कि थोड़ा सा सख्त होता है इस मामले में, तो फिर जो टैक्स ना पे करने वाले हैं और जो टैक्स पे करने वाले भी हैं वो देखते हैं कि इसका उन पे क्या असर पड़ेगा, और फिर उसमें वो अपने एक तरीक़ाकार बनाते हैं, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो ये गेम्स चलती रहती हैं। अगर ये कोई अच्छे तरीके से इन चीज़ों को गेम थ्योरी को जानता और गवर्नमेंट सर्कल्स में तो इस चीज़ों को अप्लाई करता, तो मैं यकीन करें आपको ये बता सकता हूँ, मुझे एक इस चीज़ पे पुख्ता यकीन है कि रिजल्ट्स काफ़ी डिफरेंट, नतीजे उसके काफ़ी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि थ्रू गेम थ्योरी यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन ट्राई टू गेस द बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स टू, जो और लोग हैं गेम में, कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। सो दैट मेक्स इट ईजी। But anyway, like many things over here, it somehow doesn't find practical application, which is unfortunate. बाहर मुमालिक में जो है किसी भी आप फील्ड में ले ले, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की फील्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुतालिक है, तो फॉरेन रिलेशंस तक, यानी जो खारजा अमूर है और मुमालिक से ताल्लुकात जो है, उसमें भी गेम थ्योरी की काफ़ी एप्लीकेशन होती है। Now this would be maybe unbelievable over here, शायद यहाँ पे किसी को यकीन ना आए, क्योंकि यहाँ पे तो ये काम जो है वो टिपिकल अंदाज से चलता रहता है, वही फाइलों वाला सिस्टम है और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन
the world is pretty advanced in this case, and it's moving ahead. It has applied this theory very successfully. They've been working on it, they've been improving it, and believe me, it's a very important part of economics and everyday strategy. So if you get the chance, if you ever get the chance to study this course, please do by all means. Get an introductory analysis, get an introductory class to it, introduction to it, get into an introductory class to it, and you'd see that it is very interesting. It's not that easy, but it's very interesting. For a public policy analyst, it is my belief that you need to have the tools to do this kind of thing, game theory, at least a basic understanding of it. Of course, हमारा मसला ये है कि चूँकि ये टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है और ना इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली स्टडी किया जाता है, तो मैं सिर्फ इसकी एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ. जिस तरह कि मैंने आपको प्रिजनर डिलेमा के उसमें एक स्टार्ट दिया था, मैंने कहा जी ये इस तरीके से, और वो आपने उसमें देखा होगा कि वो बेसिकली स्ट्रेटजी होती है. एक स्ट्रेटजी ये थी कि उसमें एक को नहीं पता था कि दूसरा क्या करने वाला है, तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी. दोनों ने सोचा कि मेरे लिए बेहतरीन जो हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली, सॉरी, वो क्या होगी, डोमिनेंट स्ट्रेटजीज जो थी. फिर लेकिन जब आपस में दोनों ने कोऑपरेशन करके एक दूसरे से बात करके उनकी फिर स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, उनकी हिकमत अमली डिफरेंट होगी, जिसको फिर हमने नैश इक्विलिब्रियम का नाम दिया. नैश वो मैथमेटिशियन था जिसने गेम थ्योरी पे काम किया था और नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इजाद किया. फिर बाद में उसको नोबेल प्राइज़ भी इस चीज़ पे मिला है. इनफैक्ट कुछ अरसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में शायद आप लोगों को बताया था कि रसल क्रो की एक फिल्म आई थी, अ ब्यूटीफुल माइंड, वो उसी शख्स पे, उसी साइंसदान पे थी जिसे वो नोबेल प्राइज़ मिला, जॉन नैश. इट्स अ गुड मूवी, इफ यू गेट द टाइम डू वॉच इट. बट एनीवे, लेट्स we'll be going through some very basic stuff of game theory. We'll be covering that, but beforehand, let's go through this quota thing. Last time I didn't draw it from the start, draw it from the scratch. In fact, I just used the other diagram, the tariff diagram, but I would imagine that certain students wouldn't be comfortable with it. So what I'm going to do over here is that I'm just going to draw it again. I won't go through all the details, all the areas, what is happening over here. I'm not going to write it down. Just draw it, just for your understanding. But the good thing would be, even if before I start drawing it, you can pause the video and try drawing it yourself and see what comes up, how good you are at this thing. So that would help you a lot. Anyway, let's start with this. All right, here we go. The simple y and x axis. This is price, this is quantity axis. I've certainly improved on my drawings, that you would have noticed. Now this is the typical demand curve, this is the typical supply curve. Again, try to recall why supply curve is upward sloping and demand curve is downward sloping. And here is your equilibrium price. Let us call this P naught. Now this is what I would say example of a quota. In fact, I won't say, but it is quota. We are making an analysis of quota. So this was, अब ये कीमत जो है, ये जब तजारत नहीं हो रही, किसी भी एक गुड की, किसी भी एक शय की जो कीमत है वो पी नॉट है, ये अब तजारत नहीं हो रही. अब इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या दो सिनेरियोज तो हो सकते हैं, लेकिन हम जो सिनेरियोज कंसिडर कर रहे हैं उसमें ये है कि ये जो भी शय है, जो भी चीज़ है, हमने मिसाल ली थी ये गैस की, जो नेचुरल गैस है, उसकी पाकिस्तान में काफ़ी किल्लत है, काफ़ी कम है. तो सर्दियों में तो बहुत ही कम हो जाती है, इवन गर्मियों में भी अब
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है CNG वो नहीं मिलती, आपने गाड़ियों की लंबी कतारें देखी होंगी। तो हमने ये एक सपोजिशन की थी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि चलें ये एक मायदा किसी तरह इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, अभी तक हुआ नहीं है ना, उसके कोई ज़्यादा चांस नज़र आते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि जी वो मायदा इम्प्लीमेंट हो गया और गैस ईरान से आने शुरू हो गई है, उनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, अपने उनकी इतनी जो है डिमांड नहीं है, तो वो इंपोर्ट करने पे राज़ी हैं, एक्सपोर्ट करने पे। इनफैक्ट वहाँ से ईरान से जो चीज़ पाकिस्तान आएगी वो ईरान के लिए एक्सपोर्ट होगी। तो जब ईरान से यहाँ पे गैस आना शुरू हो जाती है अंडर एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसका नतीजा ये होगा कि गैस की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। और सप्लाई जब बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसका क्या अंजाम होता है आखिर में? वो ये होता है कि उसकी कीमत गिर जाती है। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं कि उसकी कीमत कम होके P1 पे आ गई है। यहां से सप्लाई कर्व को जहां पे ये लाइन टच कर रही है उधर आ जाते हैं Q1, और ये डिमांड कर्व को जहां पे टच कर रही है ये प्राइस लाइन, उधर भी हम इसको खींच के ले आते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस तक, नीचे तक। तो ये हो जाती है, ये भी Q1 हो जाती है। अब ये तो सूरत हाल होगी। इससे पहले हमने ये कहा था कि जब तिजारत से पहले भी ये दो एरियाज थे, A और B, ये पूरे एरियाज थे। A यहाँ से लेके यहाँ तक और B यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक जा रहा था, ये वाला जा रहा था कंज्यूमर की साइड पे और ये वाला जा रहा था प्रोड्यूसर की साइड पे। तो ये दोनों जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस थे। लेकिन अब जब कीमत नीचे चली गई, कीमत कम होगी, तो जो प्रोड्यूसर है या सेलर है, जो बेचने वाला है, वो पर यूनिट उसका मुनाफा कम हो गया क्योंकि कीमत नीचे गिर गई। तो वो जो कीमत नीचे गिरने से जो उसको नुकसान हुआ है सरप्लस में, ये सारा एरिया वो चला जाएगा कंज्यूमर के पास, और ये प्रोड्यूसर के पास कौन सा एरिया रह जाएगा? ये वाला एरिया रह जाएगा C। ये ग्राफिकली हम इसको प्रोड्यूसर सरप्लस को इस तरह इलस्ट्रेट करते हैं जब एक दफ़ा ट्रेड शुरू हो जाए और कीमत नीचे गिर जाए। अब हमने बात की थी कि नॉर्मली ऐसा होता है, तरीक़ाकार यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुपों का ये होता है जिसमें कंज्यूमर तो इतने वो उनमें इतनी यकजहती नहीं है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सेलर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनमें से आपने देखा होगा कि अक्सर का कोई ना कोई ग्रुप बना होता है, उनकी कोई यूनियन बनी होती है। मिसाल मैंने आपको CNG की दी, तो CNG की पूरी एक ऑल पाकिस्तान CNG एक एसोसिएशन है, जो कि कीमत कम हो या ज़्यादा हो या कोई और इस तरह का मसला हो सप्लाई का, तो वो लोग जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये डिमांड है। अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब प्रोड्यूसर्स, हमने देखा है कि उनकी किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होना शुरू हो जाती है, तो वो हुकूमत को लॉबी करते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, हमारा कारोबार ख़राब हो रहा है और हमें फिर अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा क्योंकि कीमत कम है। और नॉर्मली सक्सेसफुल रहते हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे हमारे ममालिक, हमारा मुल्क जैसा है या इस तरह के ममालिक जो है, क्योंकि उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है। तो हुकूमत अक्सर फिर ये करती है कि इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए या किसी और मकसद के लिए, खैर ज़्यादातर हम ये सपोज करते हैं, हम ये ख्याल करते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ को बचाना है वाकई एक मकसद है। तो हुकूमत फिर क्या करेगी? अब टैरिफ वाला केस हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, इधर हम केस पढ़ रहे हैं कि हुकूमत जो है जब कोटा लगाएगी कि सिर्फ एक ख़ास मिकदार तक गैस जो है वो ईरान से आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? देखते हैं, चलें। उसका नतीजा ये होगा कि कीमत बढ़ जाएगी, P1 से P2 तक आ जाएगी जब कोटा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर एक देखेंगे आपके एक ये नया एरिया बन गया है सरप्लस का, D हो गया। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये दो एरियाज आ जाएंगे, इनको आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे एक्सटेंड करें, ये Q2 दोनों होगी, यानी नई क्वांटिटी होगी डिमांड एंड सप्लाई पे।
याद रखिएगा टैरिफ के केस में यहाँ पे हमने कोई सप्लाई कर्व नहीं बनाई थी। कोटे का केस इसलिए डिफरेंट है कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक सप्लाई कर्व बनवा दी, सप्लाई कर्व बना दी। इनफैक्ट ये आपकी सप्लाई कर्व होगी नहीं, सप्लाई कर्व राइट साइड पे है, दाईं तरफ शिफ्ट हुई है। क्यों शिफ्ट हुई है दाईं तरफ, बाईं तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हुई? हालांकि हुकूमत के इस इकदाम की वजह से तो शायद थोड़ी सी कम हो गई है, बल्कि कम हो गई है गैस, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए। क्यों ये राइट पे शिफ्ट हुई है? गो टू द प्रीवियस लेक्चर, वॉच दैट, अंडरस्टैंड द इंट्यूशन बिहाइंड दिस थिंग। एनीवे, होता यह है कि इसमें कोटा के केस में सिर्फ हमने एक सप्लाई कर्व बना दी और वो सारा एनालिसिस सेम ही है। फिर इन एरियाज को मार्क करें, ये सपोज हो गया ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया। अब कोटे के केस में ये सारा एरिया, जब टैरिफ का केस था, सारा एरिया जो था जिसमें सप्लाई कर्व नहीं थी, वो यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये जो एफ प्लस जी वाला एरिया था, ये हुकूमत के पास चला गया था, सरप्लस का एरिया, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स लगा के टैरिफ की सूरत में उसको एक मुनाफा होता है। यहाँ पे ये सारा एरिया जो है एफ प्लस जी वाला एरिया जो है, ये जो जिसके पास इंपोर्ट का लाइसेंस होता है कोटे की सूरत में, कोटा लगने के बाद इंपोर्ट लाइसेंसेस का इजरा होता है हुकूमत की तरफ से, जो लोग खरीदते हैं। तो हुकूमत से जिसने खरीद लिया तो फिर उनके पास ये हक आ गया कि ये एरिया जो सरप्लस का है ये उन लोगों का हो जाएगा, उन लोगों के पास जाएगा। तो ये एफ प्लस जी जो है ये हुकूमत के पास नहीं जा रहा कोटे के केस में, इस केस में ये जा रहा है इंपोर्ट लाइसेंस वाला जो है उसके पास जा रहा है। और याद रखिएगा कि ये जो एरियाज है दो छोटे एच और ई, ये क्या है? ये डेड वेट लॉस है। डेड वेट लॉस जो होता है कि किसी एक पॉलिसी की वजह से जो एफिशिएंसी मुतासर होती है निज़ाम की, उसकी वजह से जो डेड वेट लॉस क्रिएट होता है, इसको उसकी वजह से वो डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। और फिर बाकी ये एरियाज रह गए, ये किस किस के पास जाएंगे? कंज्यूमर के पास, प्रोड्यूसर के पास, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सो ये this was pretty much the analysis of a quota, which we did in the last lecture, and you need to understand just this stuff. You need to keep in mind the difference between the quota and tariff, and what kind, in graphical illustration, what it entails as a difference. And then I don't think I need to go through the prisoner dilemma example because I already gave the example in the last lecture. If you haven't caught up with it, you might want to go to the previous lecture and study it again. It is important. But anyway, these were the two things that we covered in the last lecture. Now, there are some games. Let's just go through some of the basics again. This is only basic theory. I'm not covering anything advanced. But we need to, as I said, that you need to have an understanding of this thing, just to have a grasp of things, just to have a grasp of strategizing, what kind of strategies are there, at least in game theory. So the games with one dominant strategy, the above are examples of simple games but have a dominant strategy for each player and Nash equilibrium. In reality, the games are more complex. Now you will have to go back to the example of prisoner dilemma. कि उसमें हमने किस तरह के मैट्रिक्स रखे हुए थे कि 3 साल की सज़ा, 3 महीने की सज़ा, 5 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा। वो जब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देयर आर गेम्स दैट हैव ओनली वन डोमिनेंट स्ट्रेटजी एंड गेम्स वेयर देयर आर 2 नैश इक्विलिब्रियम्स। ज़रूरी नहीं है कि एक जो इस तरह की गेम हो, प्रिजनर डायलेमा की गेम हो, जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, कि उसमें हर बंदे की एक डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो और सिर्फ एक ही नैश इक्विलिब्रियम हो। नैश इक्विलिब्रियम 2 भी हो सकते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी एक भी हो सकती है। टेक द एग्जांपल ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा गेम वेयर ट्रेड ऑफ्स फॉर बोथ प्रिजनर्स इन इक्विलिब्रियम आर इक्वल, 1 years ऑफ सेंटेंस, जो एक वो इक्विलिब्रियम आया था। सपोज इन द फर्स्ट बॉक्स, जो कि एक पहला बॉक्स था जिसमें दोनों कन्फेस करते थे, दोनों इकरार करते थे अपने उसका जुर्म का। The number of years is changed to 3 months for prisoner B. In that case, it is clear that the payoffs are not equal now. Although the confess box would still be an equilibrium,
the prisoner A's decision would just be a reaction to that of prisoner B's because he doesn't have the dominant strategy. He'd get more time whenever he whether he confesses or he doesn't confess. In other words, prisoner B has an advantage that prisoner A does not enjoy. This situation is a fair reflection of the real world, since many a times one participant has some advantage over his or her competitors. अब इसमें सिर्फ ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आप सिर्फ उसमें पे ऑफ मैट्रिक्स में एक जो पे ऑफ मैट्रिक्स था कन्फेस में, उसमें 1 साल की बजाय 3 महीना कर दे प्रिजनर बी के जो वो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स था, उसमें 1 साल की बजाय 3 महीना कर दे, तो वो सारी वो हिकमत अमली ही बदल जाती है. फिर प्रिजनर बी जो होता है वो एक एडवांटेज पे होगा. एडवांटेज ये होगा कि उसकी सज़ा किसी भी सूरत में कम हो जाएगी और जो आखिर में इक्विलिब्रियम आएगा वो सेम ही आएगा, कन्फेस ही आएगा. लेकिन फिर देखें कि एक ही डोमिनेंट स्ट्रेटजी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर कन्फेस करे ना करे उसको सज़ा ज़्यादा होनी है. इस सारे कहने का मकसद यह है कि अगर वो कन्फेस करे ना करे उसको सज़ा होनी है, उसे पता है. तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? ऑप्शन उसके पास यही रह जाता है कि जस्ट वेट एंड सी कि व्हाट बी डज, कि वो खुद से कोई इकदाम नहीं करेगा, वो खुद से कोई कदम नहीं उठाएगा, उसकी कोई हिकमत अमली जो है वो खुद से नहीं होगी, बल्कि उसकी हिकमत अमली डिक्टेट होगी कि वो प्रिजनर बी जो है वो क्या कदम उठाएगा. याद रखें कि हमने जब प्रिजनर डायलेमा की ओरिजिनल हमने गेम पढ़ी थी, उसमें यह था कि प्रिजनर ए की अपनी अलग स्ट्रेटजी थी और प्रिजनर बी की अपनी अलग स्ट्रेटजी, जो कि उन दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजीज थी. इधर यहाँ पे इस केस में जब हमने पे ऑफ चेंज कर दिया, वो उम्र कैद जो है वो 1 साल से 3 महीने वो बी के अगेंस्ट कर दी, तो वहाँ पे बी को एक एडवांटेज मिल गया. उसकी सज़ा ए से किसी सूरत में भी ज़्यादा नहीं हो सकती, वो कम ही होगी एज फार एज डोमिनेंट स्ट्रेटजीज आर कंसर्न. तो फिर एक जब उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी ख़त्म हो जाती है, फिर उसके पास हिकमत अमली का सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि बी क्या करेगा, बी क्या करेगा तो उस सूरत में मैं फिर क्या करूँगा. अच्छा, दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड. इज मैनी अ टाइम्स वन पार्टिसिपेंट हैज सम एडवांटेज ओवर हिज कंपेटिटर्स. बिल्कुल है जनाब, ये रियल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है. हकीकी दुनिया में यही होता है कि आप बहुत दफ़ा ऐसा आपके साथ हुआ होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है कि बहुत से केसेस में मेरा एक कंपेटिटर होता है, मेरा एक कोलीग होगा, या कोई मुझे एक मसला जब दरपेश होगा तो उसमें मेरे साथ और जो लोग होंगे उसमें शामिल होंगे, मेरे खिलाफ होंगे या मेरे साथ जो होंगे या उसी चीज़ को परस्यू करने की जब कोशिश कर रहे हैं, उनके पास एक एडवांटेज होता है. वो किसी को जानते हैं, उनकी पहुंच ज़्यादा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास दौलत ज़्यादा है, जिसको वो इस्तेमाल करके मुझ पे एक एडवांटेज हासिल कर सकते हैं. तो ये इस तरह की गेम जो है उसमें फिर मेरी कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं रहती. फिर मैं ये देखता हूँ कि जो वो करेंगे तो उसके बाद जो बच कुछ जाएगा उसके मुताबिक मैं अपनी हिकमत अमली बनाऊंगा. अब इसकी एक मिसाल क्या हो सकती है? आपको चूंकि हम हुकूमत की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, व्हाट कुड बी अ गुड एग्जांपल? अ गुड एग्जांपल इन दिस केस वुड बी many of the tenders that the government introduces for the provision of certain goods. Now government tenders, they can be small ones or they can be very big ones, huge ones, going in millions of billions of rupees. What I have witnessed in quite a few of these cases is that there are certain parties, one party or two parties or even 3 parties, that have an advantage over their competitors because they know somebody, because they already have relation with some government official, high ups, some political figures, or anybody who is a decision maker in this regard. And he has this advantage that he tries to use for his purpose, tries to gain an advantage. And now that he has this advantage, what are his competitors left with? His competitors are left with nothing but to wait and see whether he will go ahead and get that contract, or and then once he gets the contract, these parties, these leftovers, what they do is try to negotiate with that party that let us have a certain part of this contract, so we'll give you some money so that we can at least have some part of it too.
this is pretty much true in the real world, in many examples, and you'd see it around yourself every time, and in many instances. This is nothing, ये कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं है. कहीं भी चले जाएं, थाने कचहरी में चले जाएं मिसाल के तौर पे, तो बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि एक पार्टी होगी, मसलन एक पॉलिटिशियन हो गया, और एक तरफ दूसरी पार्टी होगी जिसका कोई जानने वाला नहीं है, आम बंदा है. तो इसमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी किसकी होगी? डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी वो उसी की, पॉलिटिशियन की होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक उसकी पोजीशन है, वो सारे इलाके के लोगों को जानता है. जाहिर है वो जो पुलिस वाले हैं वो भी ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसका एहतराम करेंगे. अगर कानून सही होता यहाँ पे तो इतने मसाइल भी ना होते. लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे फिर जो दूसरी पार्टी रह जाती है, जो उसके मुखालिफ पार्टी है, तो उसकी कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं रहती. वो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि वो क्या करेगा, ताकि उस पर हम अपना भी जवाब पेश कर सकें या हम भी कोई कदम उठा सकें. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केसेस where one party might find that there is no dominant strategy, or might be in real world there might be 3 or 4 parties or more than that who are waiting for one party, that is the dominant party, to make a move so that they can come up with their own strategies. So this is a very fair reflection of what happens in the real world. In the simple prisoner's dilemma and games where there is dilemma games where there is only one dominant strategy, the strategy of one player was formed regardless of what the other did. In games with no dominant strategies, both players' response depend upon the response of the opponents or the other participant. This kind of game has 2 Nash equilibria. Consider the following example given below. कि अब यहाँ पे 2 Nash equilibria भी आ सकते हैं. इसमें एक एग्जाम्पल देने की मैं आपको कोशिश करूँगा. Okay, so this is the grade गेम. यहाँ पे इसी तरह हमने बना दी. एक हो गया जनाब स्टूडेंट, लेट्स से ये हो गया स्टूडेंट ए, ये हो गया स्टूडेंट बी. अब इन दोनों के पास 2 ऑप्शंस हैं. सपोज स्टूडेंट ए डिसाइड्स टू स्टडी फिजिक्स फॉर द एग्जाम. स्टूडेंट बी इज बेस्ट स्ट्रेटजी हैज टू बी स्टडी. अच्छा, ये अब 2 स्टूडेंट ए और स्टूडेंट ए जो हैं, स्टूडेंट बी जो हैं, इन दोनों के पास ऑप्शंस क्या हैं स्टडी करने के लिए? एक होगी फिजिक्स, और एक चलिए मैथ रख लेते हैं. दोनों मुश्किल सब्जेक्ट. फिर इनका हम पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं ग्रेड्स का. अब स्टूडेंट बी फिजिक्स, सपोज ए, ग्रेड ए. इधर स्टूडेंट ए के लिए मैथ के लिए ग्रेड ए, यहाँ पे ग्रेड ए, यहाँ पे बी सी बी. आई एम श्योर कि आप सबकी नज़र जो है इस ग्रेड पे होगी, इस कोर्स के लिए भी, और होनी भी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला होगी भी. So concentrate on this example, concentrate on this number in fact. अच्छा, अब ये एक सादा सी मिसाल मैंने आपको दी. It doesn't have to be exact again. कोई बिल्कुल पिन पॉइंट एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कहा कि हम किसी इसमें कम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखें, ये इसमें 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं. अब 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी. अब इन दोनों की स्ट्रेटजी, ये आपस में अब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. ये प्रिजनर डिलेमा वाला नहीं है कि वो शुरू में कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते थे, उनको पता नहीं था कि एक दूसरे की स्ट्रेटजी क्या होगी. सो इसमें ये है कि ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि
मैं क्या करना चाहता हूँ, और दूसरा फिर उसमें अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगा। अब देखें दोनों के पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें जो उन दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजीज बनेंगी कि अगर ए स्टूडेंट बी फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो स्टूडेंट ए के लिए बी फिर सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा? स्टूडेंट बी के लिए भी सबसे बेहतरीन ऑप्शन फिर फिजिक्स का ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों को इसमें ए ग्रेड मिल रहा है, बोथ आर गुड एट इट। अगर स्टूडेंट ए जो है, पहले हमने स्टूडेंट बी के पर्सपेक्टिव से बात की, अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो फिर ए को क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद हमने बात की कि अगर स्टूडेंट ए, अब पहले वो स्टूडेंट बी की हमने बात की कि वो अगर कोई इस तरह की हिकमत अमली अपनाना चाहता है तो उसमें स्टूडेंट ए उससे क्या एग्री करेगा, उससे कोऑर्डिनेट क्या करेगा। फिर अगर स्टूडेंट ए जो है अगर वो मैथ पढ़ना चाहता है तो फिर स्टूडेंट बी के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होगी? अगर उसने ग्रेड सबसे अच्छा लेना है, ए ग्रेड लेना है, वो भी यही स्ट्रेटजी होगी। दोनों में ए ग्रेड्स आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि क्या होना है इसका अंजाम, क्या करें हम लोग ताकि हमारा हाईएस्ट ग्रेड आए। ये देखें इसमें फिर ये जो दो इक्विलिब्रियम्स आ रहे हैं, ये दो नैश इक्विलिब्रियम्स हो गए। होपफुली ये कोई इतनी कम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं थी, इसमें आप लोगों को यकीनन कोई इतना मसला नहीं हो। अगर गेम थ्योरी प्रिजनर डायलेमा आप लोगों को समझ आ गया तो फिर दिस इज़ अ पीस ऑफ केक, और ये कि स्ट्रेटेजाइज किस तरह किया जाता है। तो दिस प्रॉब्लम शुडंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, what it is. Repeated games and backward induction. Prisoner's dilemma represents a game where there is finite time. Its time is not infinite. ये कि लामहदूद वक्त नहीं है, finite time है, महदूद वक्त है। And one outcome as the game ends. However, strategies and games can be repeated over and over, and results may be different each time the game is repeated. For example, Pakistan and India have fought each other many times. Each time the strategy was different and it will keep changing according to the situation. अब मैंने इसमें देखे जंगों की भी बात की, गेम स्ट्रेटजी में जंगें भी आ गई, एक मिलिट्री स्ट्रेटजी भी आ गई। और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंगों की नहीं, कोई भी आप जंग ले लें, तारीख अब उठा ले जंगें जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हुए, हर दफ़ा स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, इसलिए क्योंकि हर दफ़ा हथियार डिफरेंट होते हैं, हर दफ़ा टैक्टिक्स डिफरेंट होते हैं, जगह डिफरेंट होगी, कोई और चीज़ होगी जो कि एक फ़र्क चीज़ होगी, तो उस फ़र्क की वजह से स्ट्रेटजी भी बदलती रहती है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम स्ट्रेटजी टू। इनफैक्ट कुछ अरसे पहले एक जो गेम स्ट्रेटेजिस्ट था, जो कि गेम स्ट्रेटजी में एक इकोनॉमिस्ट था, जो कि स्पेसिफिकली उसने स्पेशलाइज किया हुआ था गेम स्ट्रेटजी में, उसे नोबेल प्राइज़ मिला। उसका जो एक काम शुरू में उसने जिस चीज़ पे रिसर्च की थी वो ये की थी कि उसको ये काम सौंपा गया था कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के जो न्यूक्लियर या एटमी जंग की जो स्ट्रेटजी है या हिकमत अमली है वो सोवियत यूनियन के मुकाबले में क्या हो, वो उसमें सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होगी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, उसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो उसने जो रिसर्च वाला काम किया था, उसने जो रिसर्च वर्क किया था, वो आज भी इट स्टैंड्स ट्रू, इट टर्न्स आउट। तो आज भी वो उसी तरह सही है, डिस्पाइट ये कि वो रिसर्च उसने कोई तकरीबन 30 साल 35 साल पहले की थी, लेकिन जो उसके नताइज हैं वो आजकल भी वो लागू होते हैं, मौजू हैं आजकल के लिए भी। तो उसको इस चीज़ पे नोबेल प्राइज़ मिला था। जैसा कि हमने कहा कि ये तकरीबन हर शोबे ज़िंदगी में इसका इतलाक़ हो सकता है। सो दिस इज़ वन एग्जांपल फॉर यू। सिमिलरली इलेक्शंस और पॉलिटिक्स डू नॉट हैव अ टाइम फ्रेम। कोई टाइम फ्रेम नहीं है इलेक्शंस का, इलेक्शंस होते रहते हैं। In a particular election, strategy may be adopted which may not be used in another election. In these kind of games where the outcome can be repeated more than once, it is useful to think ahead and try to reason what the results would be. अच्छा, अब इस तरह की गेम्स में जो कि फाइनाइट नहीं होती, इन्फिनिट होती है। इलेक्शन ये नहीं होता कि सिर्फ एक दफ़ा हो गया उसके बाद इलेक्शन कोई होना नहीं है, या जंगों का ये नहीं है कि एक दफ़ा होगी उसके बाद कोई जंग होनी नहीं है। इस तरह की जो होती हैं गेम्स,
उसमें कोई बार बार एक स्ट्रेटजी ज़रूरी नहीं है कि रिपीट हो, जैसे मैंने कहा है कि थिंग्स चेंज। एक उसमें बेहतरीन तरीकाकार ये है जो स्ट्रेटजी बना रहा है कि बैकवर्ड इंडक्शन की जाए। बैकवर्ड इंडक्शन से मतलब कि वो सोचे आगे कि आज से 1 साल बाद क्या होना है, या अगर वो इलेक्शन 1 साल बाद होने जा रहा है तो वो थोड़ा सा आगे सोचे कि इलेक्शन के दौरान क्या हो सकता है। अब वहाँ से वो शुरू होता है, साल पहले से शुरू होता है, फिर आराम से पीछे आता जाता है कि अच्छा उसमें फिर ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, हमारे ख्याल में ये है, क्योंकि ये भी गैसिंग गेम ही है ना। तो दैट इज़ बैकवर्ड इंडक्शन कि आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचें कि इस पॉइंट पे साल बाद 2 साल बाद हमारे ख्याल में ये होने वाला है, फिर पीछे आते जाएं आराम आराम से और उसमें देखते जाएं कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। दैट इज़ बैकवर्ड इंडक्शन एंड दीज बैकवर्ड इंडक्शन आर पार्ट ऑफ इनफिनिट गेम्स, जिनके कोई अभी खात्मा, जो कहते हैं ना कि आपकी उसकी कोई खात्मे का कोई टाइम नहीं है। टाइम का मतलब ये नहीं है कि बस वो होते ही रहते हैं, इलेक्शन बस एक वक्त 2-3 दिन होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये है कि द प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग। इन अदर वर्ड्स, अ प्लेयर कैन गेन एन एडवांटेज बाय थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज स्ट्रेटजीज and then start going backward to try to imagine or guess what his opponent would do. This is known as backward induction or backward reasoning, and is used in games where there is more than one outcome. Then there are sequential games, are games that require a step-by-step response. One player moves first, then the other responds. Backward induction can also be used. अब यहाँ पे जो one player moves first and the other responds, के एक player पहले एक strategy बनाता है, एक कदम उठाता है, तो दूसरा फिर उसके बाद उसके नतीजे में कदम उठाता है। ये इस किस्म के केसेस में होता है जहाँ पे आपस में कोई कॉपरेशन ना हो, एक दूसरे से जान पहचान ना हो, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, इंफॉर्मेशन फ्लो ना हो एक दूसरे के साथ। तो फिर उसमें ये होता है कि जब एक प्लेयर वेट करता है, दूसरा कदम उठाता है, और उसके बाद जब या फिर दूसरा जब कदम उठाते हैं तो पहला वाला उसको देख के अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है। तो आर one player moves first and the other responds. Backward induction can also be used in these games. Backward induction in games में भी use हो सकती है। Sequential moves of players are illustrated through a game tree, which is like a tree with branches representing various decisions. अब क्या हो सकती है, गेम ट्री किस तरह की हो सकती है? जैसे आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। सपोज ये थोड़ा समय है इसमें, ये जो स्पेस है, स्पेस थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के गेम ट्री कैसी बनाई जाती है। ये सपोज प्लेयर ए हो गया, और ये प्लेयर बी हो गया। प्लेयर ए, प्लेयर बी। अब उसकी 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। 2 स्ट्रेटजीज को क्या नाम दें? स्ट्रेटजी, लेट्स कॉल इट स्ट्रेटजी ए एंड द अदर वन इज स्ट्रेटजी बी। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारा जो आपको नजर आ रहा है, ये एक मसलन दरख्त हो गया और ये उसकी शाखें होगी। दिस इज द सीक्वेंशियल गेम्स एंड जस्ट लाइक अ ट्री विद ब्रांचेस। सिमिलरली आप देखेंगे प्लेयर बी है, उसकी एक स्ट्रेटजी होगी जो होगी स्ट्रेटजी ए, स्ट्रेटजी बी। अब मिसाल के तौर पे जो प्लेयर ए है वो स्ट्रेटजी ए को चूज करता है, सॉरी ये स्ट्रेटजी बी होगी, स्ट्रेटजी ए को चूज करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में फॉर एग्जाम्पल प्लेयर बी स्ट्रेटजी बी चूज करता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद चूंकि ये सीक्वेंशियल गेम, दीज आर अनएंडिंग गेम्स, कि ये खत्म होनी हो रही, सीक्वेंस चलता रहता है। अभी मैंने आपको इलेक्शन की मिसाल दी, इसके बाद दोबारा जो उसने ये स्ट्रेटजी अपना ली, उसके बाद उसने दोबारा जो है कोई और स्ट्रेटजी अपनानी, तो फिर स्ट्रेटजी ए के जो है 2 मजीद ब्रांचेज होंगी इस तरह, ये स्ट्रेटजी सी, स्ट्रेटजी डी। अब उसने भी इसी तरह यहाँ पे प्लेयर बी का भी आ जाएगा कि इसकी भी फिर ब्रांचेस, जो ऑलरेडी उसने एक स्टेप उठाया, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसकी भी 2 मजीद आगे स्ट्रेटजीज आ जाएंगी क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं।
तो एक होगा स्ट्रेटजी सी, एक होगा स्ट्रेटजी डी। तो अब सपोज यहाँ पे प्लेयर ए की नेक्स्ट स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी डी होती है, और जो प्लेयर बी है, जब वो प्लेयर ए स्ट्रेटजी डी चलता है तो उसके बाद स्ट्रेटजी सी चलाता है। कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे देखिए कि ये ट्रीज, दिस इज अबाउट ट्रीज एंड ब्रांचेस, दिस A representing a tree, these are its branches, and it further branches out in terms of reaction. This is player B, and these strategies are its branches, and this then strategy further branches out. So these are sequential games. They are carrying on in a sequence, and again it's all about responses and how one measures those responses. It is not necessary that games only have two participants. In the real world there are more than two participants, and many results of a specific game, one such game relating to a foreign policy is shown below. अब real world में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप दो ही participants हैं और दो ही गेम में। गेम्स बहुत सी हो सकती हैं, जैसे कि sequential games हैं। एक हम गेम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ही गेम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दो ही पार्टिसिपेंट्स हैं। अब मैंने यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की एक गेम सिंपल इलस्ट्रेशन दूंगा, कोशिश करता हूँ एज फार एज आई कैन रिमेम्बर आपको एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन देने करूंगा कि ये है क्या, व्हाट इज इट। सो लेट्स गेट अहेड, not get ahead, but let's get a start. In fact, so suppose there are three countries. You have three countries. A, B, and C. Suppose country A यहाँ पे आ गया, कंट्री C यहाँ पे आ गया, कंट्री B यहाँ पे आ गया, और कंट्री C उससे नीचे आएगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये देखना है कि ऑप्शंस क्या है, किस चीज़ के बारे में गेम इस चीज़ के बारे में है कि वेदर टू फॉर्म अ कोलिशन, यानी एक इत्तेहाद बनाया जाए या ना बनाया जाए, नो कोलिशन। इसके पास दो ऑप्शन आ गए। सिमिलरली इधर कोलिशन, नो कोलिशन। इन दोनों के दरम्यान में इस तरह की एक गेम आ जाएगी। इस तरीके से एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना, फिर इसमें नीचे ही इसके कंट्रीज C आ गई, जिसके पास भी यही कोलिशन और नो कोलिशन। उसके पास भी ये दो चॉइसेस है। अब देखें यहाँ पे तीन गेम के पार्टिसिपेंट्स आ गए और तीनों के पास चॉइसेस हैं। ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरह। अब देखिए इसमें पे ऑफ्स हैं। पे ऑफ्स जो हैं, अब पहले तो दो प्लेयर्स थे तो उनके दो पे ऑफ्स होते थे। अब इसमें पे ऑफ्स, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं पे ऑफ्स इस तरह लिख देता हूँ, 8, 9। ये होगी कंट्री ए की पे ऑफ्स होगी, ये कंट्री बी की होगी, ये सी की होगी पे ऑफ्स जो हैं। फिर इसी चीज़ को हम इधर रिवर्स ऑर्डर में ले आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। फिर इसी तरह यहाँ पे 7, 10, 6, 5, 8, 10। देखिए अब ये पे ऑफ्स हैं और इसमें के अब इसमें मसला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर दीज थ्री कंट्रीज फेसिंग। दीज थ्री कंट्रीज आर फेसिंग दिस नॉट अ प्रॉब्लम बट दिस moment of decision, this moment of decision on whether to form a coalition or not a coalition.
should they be in a coalition, should they not be in a coalition, should two countries be in a coalition without taking the other one out of it, keeping the other one out of it, or should this be a grand coalition? अब इसमें चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. चार पॉसिबिलिटीज़ इसमें क्या हो सकती हैं? एक हो सकती है कि तीनों ममालिक साथ हों, यानी ए, बी, सी, तीनों ममालिक एक अपना कोलिशन बना लें. इसको कहते हैं ग्रैंड कोलिशन, कि सारे ममालिक एक साथ हैं इसमें, जो भी इस गेम में शामिल है. अब जंगे, जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम हुई थी, उसमें इसी तरह हुआ था कि बहुत से ममालिक जो हैं 3-4 इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना एक ग्रैंड कोलिशन बना लिया और दुनिया दो हिस्सों में बट गई. जब एक तरफ एलाइड पावर्स आ गई, एक तरफ जो है एक्सिस पावर्स आ गई, तो ये इस किस्म के ग्रैंड कोलिशंस. अब एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए और बी हो और सी अलहदा से हो, उसमें कोलिशन में ना हो, ग्रैंड कोलिशन में ना हो. तो फिर ये जो है ये ग्रैंड कोलिशन नहीं होगा, ये होगा कोलिशन, यानी एक पार्टिसिपेंट उससे बाहर है. फिर एक और क्या हो सकती है आउटकम इसमें? ये हो सकता है कि ए और सी हो, अपना कोलिशन बना ले और बी उससे बाहर हो. चौथा क्या हो सकता है कि बी और सी मिलके अपना कोलिशन बना ले और ए उससे बाहर हो. ये भी कोलिशन है. So this is an illustration of a game where there are more than two players, and this is really what happens in the real world. That you won't find कि जी यहाँ पे सिर्फ एक दो ही प्लेयर्स हैं. दो ही प्लेयर्स नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा तादाद में लोग होंगे जिसमें वो गेम्स खेलनी पड़ती है, वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है. So this was an example of a foreign policy game, whether to form a coalition or not to form a coalition. Last but not the least, go ahead on again an article, a very interesting one, बहुत ही ज़बरदस्त article है. Read this one. We'll discuss it in the start of the next lecture. But this is about water shortages. It's one of Australia's driest cities. वहाँ पे बहुत ही कम बारिशें होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कभी पानी का कहत नहीं आया. पानी वहाँ पे वाफिर मकदार में मौजूद होता है. For us, this is a learning experience. As I said, when you are taking the example of other countries, try to learn the success stories. Not just say ये नहीं कि एक मुल्क की मिसाल ली और यहाँ पे कहना शुरू कर दिया कि जी हमारा इस तरह क्यों है और गालियाँ देने शुरू कर दी. नो, बुरा भला कहना शुरू कर दिया. इनफैक्ट वो ये है कि आप सक्सेस स्टोरीज देखें. कंपैरिजन्स का मकसद ये होता है कि एक सक्सेस स्टोरी देखें कि क्या हो रहा है उसमें और किस तरीके से उन्होंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई. अब ये स्ट्रैटेजी जो है ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. पाकिस्तान में पानी की बड़ी किल्लत है बहुत से इलाकों में. इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री शायद डिक्लेयर करने वाले हैं या डिक्लेयर हो गया है कि बहुत पर कैपिटा फीकस जो पानी की कंजम्पशन है या जो फीकस पानी मौजूद है लोगों के लिए वो बहुत कम है. तो more the important that we in fact given this situation it is more than important now that we conserve water and try to find out what other countries did in this regard and were successful. And this is one example of one of Australia's driest cities and how they tend to overcome this shortage, and they are pretty successful at it. So before the next lecture, please do read this article. This is a very interesting one and applies very much to case of Pakistan because there are quite a few water shortages here. Specifically in the city that I live, it's difficult to find a tanker even in the months of when it gets very hot, like the months of June and July. So do read that before the next lecture. I'm sure again you would find this a very interesting, very good read. And then before the next, at the start of the next lecture, we'll discuss a bit of it. Anyway, before saying Allah Hafiz, before saying goodbye, let's discuss a few. Let's briefly go into what we discussed in this lecture. And this discussion was about. I made a graph
showing you the quota example, and it was about the game theory. Then we went through some of the examples of the game theory with different types of games with two Nash equilibria, with no dominant strategy, sequential games, and this kind of stuff. So it was just giving you a head start. It was just about making you understand what game theory is and what kind of games are played in it. How do you make a strategy in it? So hopefully you found the lecture interesting, engaging. Till next time, Allah Hafiz, goodbye.